Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel शिव अकेडमी सोनीपत. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं तीन टॉपिक्स को कवर करूंगा. फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड वन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट, एंड द लास्ट solution of an exact differential equation, that how we can find the solution of an exact differential equation. So let us start with the definition of an exact differential equation. So if you look at the definition of an exact differential equation, we are saying that a differential equation is said to be exact if it is obtained by direct differentiation of its solution of the type gx y equal to c. Meaning to say, whenever we can obtain a differential equation by direct differentiation of its solution, then we say that differential equation is exact. Meaning of direct differentiation is what? That we are neither applying the condition of any multiplication or any evaluation. Only what we have to do, we have to just differentiate the solution of the equation, and if we obtain the differential equation, then we say that it is exact. Another definition is, if you look at here, we have taken two functions of x and y, m and n. Then we say that the differential equation m dx plus n dy equal to 0 is said to be exact if m dx plus n dy is the exact differential. Rather, we say it exact differential of a function of x and y. Meaning to say, if this m dx plus n dy is equal to something d of v, where we have taken v as a function of x and y. We have taken v as a function of x and y. Then we say that this differential equation is an exact differential equation. So let us take an example. So if you look at here, we have taken this x dy plus y dx is equal to 0. So we are saying that it is an exact differential equation. Why? Because if you look at the solution of this equation, which is xy equal to c. So मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा. तो ये देखिए, आपका जो इक्वेशन है वो है x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0. तो हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम जो चेक करते हैं कि इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे. तो ये हमारे पास बन जाएगा x dy इज इक्वल टू माइनस y dx. यहां से वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा dy ओवर y इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x. और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होंगे हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, log y लेफ्ट साइड का, राइट साइड में आ जाएगा माइनस log x. और ये आप लोगों ने पहले पढ़ा, अगर दोनों ही log में आ रही है वैल्यू तो हम कांस्टेंट भी किसकी फॉर्म में लेते हैं, c. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू log m माइनस log n की प्रॉपर्टी आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा c अपॉन x. और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x y इक्वल टू c. So we get the solution of this differential equation as x y equal to c. और ये हमें पता है कि हम इस x y equal to c को लेके चलते हैं, x y is equal to c, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हमारे पास क्या आएगा, x as it is, डेरिवेटिव ऑफ y is dy, y as it is, डेरिवेटिव of x is dx, and डेरिवेटिव comes to 0. Meaning to say, just by the direct differentiation of this solution, we have got this equation x dy plus y dx equal to 0. तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी इसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से. हमने ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया, ना हमने इसमें कुछ एलिमिनेट किया. दैट्स व्हाई वी से दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट. तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है, थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम. तो थ्योरम की स्टेटमेंट जो हमारे पास है, शो दैट द नेसेसरी and
sufficient condition for a differential equation m dx plus n dy is equal to 0. To be exact, is that curl m upon curl y is equal to curl n upon curl x, or you say del m over del y is equal to del n over del x. So we do the proof. Let us start the proof of this. So in the proof we take two conditions. So let us start the proof. So in the proof, first condition is necessary condition. नेसेसरी कंडीशन का मीनिंग क्या है कि वो हर कंडीशन में होल्ड करेगी, और सफिशिएंट का मतलब होता है कि वो होल्ड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इसलिए हम जो इसमें नेसेसरी कंडीशन लेंगे वो क्या लेंगे, हम मान के चल पड़ते हैं कि जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, तो उस केस में हमेशा हमारे पास क्या आएगा, कर्ल m बाई कर्ल y को क्या आएगा, कर्ल m बाई कर्ल x आएगा। तो इसलिए हम सपोज करके चलते हैं, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग इट डी m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होगी तो हम डेफिनेशन इस पे अप्लाई कर देंगे। सो बाय डेफिनेशन तो अभी हमने डेफिनेशन जो लिखी थी सेकंड वन, जिसमें हमने कहा था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो होगा वो डिफरेंशियल आएगा किसी फंक्शन v का, जिसमें v होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। v जो होगा क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हम इसमें क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को क्या ले लेंगे, यहाँ से डी वी को ले लेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखिए आपकी जो v है वो हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। नाउ v इज इक्वल टू वी एक्स वाई। तो टोटल डिफरेंशियल क्या प्रॉपर्टी लगाई, dv हमारे पास आ जाएगा कर्ल v बाई कर्ल x dx प्लस कर्ल v बाई कर्ल y dy। क्योंकि v हमारे पास दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो जब भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का कोई फंक्शन हो तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसलिए हमारे पास जो dy आएगा टोटल डिफरेंशियल ऑफ v, दैट इज कर्ल v बाई कर्ल x dx प्लस कर्ल v बाई कर्ल y dy। वी टेक इट एज 2। तो आप 1 और 2 को आप कंपेयर कीजिए। तो जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या होगा, dx का कोएफिशिएंट 1 में क्या है m, और 2 के अंदर हमारे पास है कर्ल v बाई कर्ल x। dy का कोएफिशिएंट 1 के अंदर हमारे पास है n, और सेकंड के अंदर है कर्ल v बाई कर्ल y। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग the coefficients, comparing the coefficients of dx and dy in 1 and 2 we get। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से m आ जाएगा हमारे पास, कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल टू del v by del x and n is equal to del v upon del y। तो अब आप ये देखिए, जो हमें प्रूफ करना है इसका, या जो प्रूव करना है, तो उसमें हमें क्या करना है, आप इधर देखिए, डेल m बाई डेल y हमें दिखाना है। डेल m बाई डेल y किसके इक्वल आना चाहिए, डेल n बाई डेल x के। तो हमारे पास ये जो m आ गया इधर m, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड जो है वो यही है, कर्ल m अपॉन कर्ल y। और इसी तरह से राइट साइड के लिए हम क्या करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए हम क्या करते हैं, m हमारे पास है कर्ल v बाई कर्ल x। तो इसलिए हम क्या करेंगे,
Therefore, curl m upon curl y is equal to curl by curl y of कर्ल v by कर्ल x। और इसको हम क्या ले सकते हैं, कर्ल टू v अपॉन ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा v का विद रिस्पेक्ट टू yx लिखो, या आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में रूल होता है कि जो कर्ल टू v बाय कर्ल y कर्ल x होगा उसको आप कर्ल टू v बाय कर्ल x कर्ल y भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें कंप्यूट करेंगे कर्ल n बाय कर्ल x, that will be curl by curl x of what was the value of v, it was curl v by curl y, that's why we get it curl v by curl x curl y. So if we look at these two values, it is also curl to v by curl x curl y, it is also curl to v by curl x curl y. That means to say in both cases we get curl m by curl y equal to curl m by curl x. Thus we get कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल m बाय कर्ल x। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे एग्जैक्ट होने की, वो यही है कि अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 हमारे पास एग्जैक्ट है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल m बाय कर्ल x, ये जरूर है। जो सफिशिएंट कंडीशन है उसको देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन मतलब इसका क्या होता है, कन्वर्स होता है। सफिशिएंट कंडीशन तो कन्वर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब बनेगी, जब वो किसी xy के फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, डायरेक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी। तो इसलिए हम सफिशिएंट कंडीशन के लिए सपोज करके चल पड़ते हैं। लेट अस सपोज दैट कर्ल m ओवर कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n ओवर कर्ल x। तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर से कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n by कर्ल x। required to prove, in short we can write RTP, required to prove m dx plus n dy equal to 0 is exact। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि हम m dx plus n dy को क्या दिखा देंगे, डिफरेंशियल ऑफ सम v कुछ भी हो सकता है हमारे पास जो कि xy का फंक्शन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए लेट हम इस m का जो इंटीग्रल आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, m का इंटीग्रल आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम सपोज करो v के इक्वल मान लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर इसमें 3, क्योंकि 1 2 हम उसमें पहले मान चुके हैं। जिसके अंदर आप ये देखो हम m फंक्शन है xy का, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसमें जो y होगा वो उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। वेयर द इंटीग्रेशन has been performed by keeping y as a constant, okay। So now what we do, we differentiate this 3. If you look at this 3, integral m dx equal to v, so we differentiate it partially with respect to x. So what do we get? So next what we do, we differentiate this 3 with respect to x. So what do we get? Therefore curl by curl x of, because the left side was integral m dx is equal to integral m dx is equal to curl v by curl x. So it is integration with respect to x and derivative with respect to x, and integration is nothing, it is antiderivative. So from here what we get, m is equal to del v upon del x.
So it is what our equation number 4. So we can take it as 4. Okay. Now if we look at this m, and again we differentiate m with respect to y. So what do we get? Curl m by curl y is equal to curl y of curl v by curl x. We need to say what we get it as curl 2v over curl y curl x, curl 2 or curl y curl x. But we have given that this curl m upon curl y is equal to curl m by curl x. So we get the value of curl m by curl y as curl 2v by curl y curl x. हमें curl m by curl y की वैल्यू क्या है? कर्ल 2v by कर्ल y कर्ल x मिल चुकी है, लेकिन ये क्योंकि हमें गिवन है, ये गिवन है हमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो कर्ल n by कर्ल x उसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? therefore कर्ल n by कर्ल x is equal to कर्ल 2v by कर्ल y कर्ल x. लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कर्ल 2v by कर्ल x, वो कर्ल 2v by कर्ल x कर्ल y के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स टू से ये हमारे पास बन जाएगा कर्ल n by कर्ल x ऑफ कर्ल v अपॉन कर्ल y. क्योंकि m तो हमारे पास देखिए मिल गया कर्ल v by कर्ल x. अब हम ऐसे ही n निकालना चाह रहे हैं, जिससे हमारे पास m dx प्लस n dy मिल जाएगा. तो ये हमारे पास आएगा कर्ल by कर्ल x ऑफ कर्ल v by कर्ल y. तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और अब हम y को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे. तो इसमें लिखेंगे इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, integrating both sides with respect to x, keeping y as a constant, we get. So again, because it is derivative with respect to x, so we are having just here n, so we get here n, and it is curl v by curl y plus constant. So because we are keeping y as a constant, so we write it as curl fy. So we write it as fy, where fy is a constant. क्योंकि इसमें y कांस्टेंट ले रहे, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो हम फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में ही लेके चलेंगे. ठीक है. और इसलिए हमारे पास ये देखिए 5 आ गया, इसको हम 5 मान लेते हैं. तो ये 4 से हमारे पास देखिए 4 से हमारे पास m की वैल्यू है कर्ल v बाय कर्ल x, और ये 5 से हमारे पास n की वैल्यू आ गई. सो फ्रॉम 4 and 5, सो फ्रॉम 4 and 5 m dx plus n dy, because we have to show that it is exact, so we take m dx plus n dy. So value of m is what? Curl v by curl x dx plus value of n is what? Value of n is curl v by curl y plus fy, and it is dy. ये हमने 4 से वैल्यू पुट कर दी है m की, ये हमने 5 से वैल्यू पुट कर दी है n की. तो फाइनली हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा therefore m dx plus n dy is equal to कर्ल v by कर्ल x, और इधर आ जाएगा dx plus कर्ल v by कर्ल y dy, और प्लस हमारे पास उसमें जो टर्म बचेगी दैट विल बी फंक्शन ऑफ y dy. और ये जो टोटल वैल्यू होगी, अब आप देखिए टोटल डिफरेंशियल की वजह से ये हमारे पास आ जाएगी d ऑफ v, क्योंकि d ऑफ v की वैल्यू क्या थी? कर्ल v बाय कर्ल x dx प्लस कर्ल v बाय कर्ल y dy प्लस fy dy. और इसको कंबाइन करके हम क्या ले सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज d ऑफ v प्लस, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है नहीं, तो हम इसको क्या लिख देंगे? इंटीग्रल fy dy इक्वल टू d ऑफ v प्लस इंटीग्रल fy dy.
तो इसको मैं सपोज कीजिए, मैं इसको कह सकता हूं कि ये समथिंग u है, और क्योंकि v फंक्शन एक्स वाई का, यहां से हमारे पास y की टर्म आएगी, तो हम क्या कह देंगे u इज इक्वल टू v प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट डिफरेंशियल आ गया किसी फंक्शन u का जो कि एक्स वाई का फंक्शन है। और इसी वजह से हम जो अगर डेफिनेशन से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इससे पहले आप देखिए हम इक्वेशन नंबर कहां तक ले चुके हैं 5, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 6 वी कैन से दैट, फ्रॉम 6 वी कैन से दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 is एग्जैक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक करने के लिए उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन कैसे बता सकते हैं। और जिसमें लास्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, solution of an exact differential equation, solution of an exact differential equation। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हम ये मान के चल पड़ते हैं let m dx plus n dy equal to 0 be exact। तो एग्जैक्ट होगी तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, ये किसी फंक्शन का क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशियल आ जाएगा। तो अभी इक्वेशन नंबर 6 आप देखिए, उसमें हम क्या करेंगे, देन m dx plus n dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, हमने क्या लिया था, v प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। अब ये एक बार हम बैक स्क्रीन कर देते हैं। ये देखिए इक्वेशन नंबर 6 थी m dx plus n dy इक्वल टू d ऑफ इंटीग्रल v प्लस इंटीग्रल f y dy। ओके, लेकिन m dx plus n dy तो 0 हमारे पास, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू d ऑफ v प्लस इंटीग्रल f y dy। ओके, सो यहां से हम क्या मिल जाएगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग we get, तो ये इंटीग्रेट करोगे तो यहां से मैं क्या मिल जाएगा, v प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये क्योंकि इंटीग्रेशन है तो हम इसलिए क्या करेंगे, 0 प्लस सी कर देंगे। ये हमारे पास सी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और यू से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे यहां से, अब देखिए v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हम वापस आते हैं, एक बार आपको v की वैल्यू दिखा देते हैं जो हमने सपोज की थी। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमने, ये देखिए आपका रिजल्ट है ये दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, v की वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रल m dx, जिसमें हमने y को क्या रखा कांस्टेंट। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल m dx, y की वैल्यू हमने रख दी y कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा जैसे। अब आप ये देखिए यहाँ पे एफ वाई डी वाई मीन्स टू से, जो आप इसको लिखोगे एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सी, एफ वाई डी वाई इक्वल टू सी। और ये हमने देखिए क्या कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे, और इंटीग्रल एम डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल टर्म्स इन एन नोट containing x with respect to y is equal to c।
terms in n not containing x with respect to y is equal to c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हमने जो n लिया था वो क्या था, कर्ल u बाय कर्ल y प्लस fy। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे n की सिर्फ वे टर्म लेंगे जिनके अंदर x नहीं है, क्योंकि fy में कोई x नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, इंटीग्रल m dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर से, क्योंकि आप ये देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं v प्लस इंटीग्रल f dy इक्वल टू c, v की हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये फंक्शन ऑफ y है सिर्फ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, n के अंदर से हम सिर्फ वो टर्म लेंगे जो x को कंटेन नहीं करती, उसको इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू y, और दोनों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश की जाएगी आपको वो जो कमेंट आपकी क्वेरी है वो जल्द से जल्द सोल्व की जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।